Good evening. With the spread of pandemic and epidemics in the human race, we have seen in the past that various pandemics and epidemics are giving challenges to the human race from time to time. Recently, with the spread of pandemic of COVID-19, which has given a massive attack on almost all the countries of the world, we have seen it is going to be a worse situation. Day by day, the number of cases have been increased. Though it is very convenient for the multinationals and professionals to go for work from home, but the most affected sector for all the countries is education. The survey which was recently done shows that about 2.1 billion students all over the world are sitting at home due to school closures. It is only because of this pandemic of COVID-19. This has raised the concern among the policymakers, the bureaucrats. So what they are doing, they are just planning to have new reinvention the education system, resulting into smart classes, e-learning, distance learning. This has shattered the economy almost all over the world. But taking positively, this has increased the opportunity for every country to invest more and more money in such infrastructure and technology. Recent study says before COVID-19, the total investment in edutech, that is the educational technology, was just $18.66 billion. And it is expected that within next 2 years, it is going to increase for $358 billion. So there is a positive effect also for this pandemic or epidemic. Today is a International Literacy Day, and what we are doing on this particular occasion, this is going to change a new definition for literacy as well as the illiteracy. Earlier, what happened, anyone who is unable to read or write is termed as illiterate person. But now the definition has changed. With the spread of this epidemic, if a person is not conversant with the new technology, then that person is going to be an illiterate person. समय के साथ साथ जैसे ही तकनीक में ये बदलाव आ रहा है, ऐसे ही शिक्षा के अंदर भी हम अनेक ऐसे बदलाव देख रहे हैं। इस पैंडेमिक से, इस कोविड-19 से जो सबसे अधिक जो असर पड़ा है वो शिक्षण संस्थाओं पर पड़ा है, शिक्षा की संस्थाओं पर पड़ा है। आज विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ बड़े ही एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और जिनका अनुभव बहुत ज़्यादा है इस शिक्षा के क्षेत्र में और ही साथ साथ इस तकनीक के क्षेत्र में। तो आइए जानते हैं आज हमारे साथ कौन कौन है और हम एक एक करके आज ही उन सबसे राय लेंगे, सबसे बात करेंगे। We will try to analyze the things, we will try to find the new solutions, and we will try to find how we can implement these technologies in the educational sector so that it is going to benefit all the institutions as well as the whole society. Let me introduce one by one. The first on my left hand side is sitting Dr. Professor Amit Kumar. He is holding a PhD degree in chemistry from one of the leading University of India and having teaching and counseling experience for more than 12 years. We have Raman Singh Menas ji with us. She is a highly qualified, experienced and a versatile educationist having more than 40 years of experience in education field in various capacities, having expertise in curriculum planning for schools and colleges and worked for various esteemed institutions of India. Awarded by Honorable President of India for implementing IT enhancement in the college, presently she is working as an administrator of SNCF educational institutions. Dr. Rajesh Tyagi, after doing MTech from Kurukshetra University, he is holding PhD degree from IP University Delhi and have extensive experience in research and published around 55 research journals in various reputed national and international papers. We have on parent front Alka Jaggi, and apart from these panelists, we have student representation Vasundhara Pandey, Samdesh Sharma. So I welcome you all the panelists, and let's start our discussion on today's topic with Dr. Amit. Dr. Amit, जैसे आज
जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं कोविड-19 के, इसके अंदर एक बदलाव आया है। स्टूडेंट्स को लेकर देखें और अगर शिक्षा को भी लेके देखें और साथ में एक टीचर्स को भी लेके देखें, तो ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, जो पहले नहीं था लेकिन अब हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं इसको, तो ये कौन सा बदलाव है और इसको हम पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, या इसका इम्पैक्ट, इसका जो असर जा रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और साथ ही टीचर्स के ऊपर, क्योंकि टीचर्स के लिए बड़ा ही शायद मुश्किल हो जाएगा कि स्टूडेंट्स की असेसमेंट करना, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करना, उनके एग्जामिनेशंस को लेना। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू संजय जी। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि मार्च से जो पहले का पीरियड था, जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, तो वो एक क्लोज क्लासरूम कंसेप्ट था जहाँ पे चॉक एंड टॉक मेथड चलता था। टीचर्स फेस टू फेस बच्चे से इंटरेक्ट करते थे, कोई क्वेश्चन जो होते थे, ग्रुप डिस्कशंस होते थे। तो वो क्लासरूम डिस्कशन अब वाइड हो गया है। अब बच्चा अपने अपने घर पे बैठा है, वहाँ से वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और धीरे धीरे कोविड-19 इस पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। यहाँ पे बच्चे धीरे धीरे आईटी के नए नए टूल्स को गैदर कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, जूम आ गया है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, डिफरेंट कंसेप्ट्स आर देयर। एंड नॉट ओनली दीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, देयर आर डिफरेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। तो बच्चा जहाँ पे धीरे धीरे लर्न कर रहा है, वहीं पे टीचर्स का भी रोल बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते थे, मैं उन टीचर्स को की बात कर रहा हूँ जो कंप्यूटर या टेक सेवी नहीं थे, या कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं था उनका। आज वो धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं कैसे उन टूल्स को यूज़ करना है। हर टीचर ये अब ये जान रहा है कि मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाने हैं, कैसे मुझे उसकी डिलीवरी करनी है, आगे प्रेजेंटेशन को कितना एनिमेशन का यूज़ करना है, वीडियो लेक्चर्स कैसे डेवलप करने हैं। तो आज टीचर्स की भी स्किल इम्प्रूव हो रही है। सीरियसली इसको देखा जाए इस तरीके से कि आज के टाइम में ऑनलाइन लर्निंग बहुत इंक्लूड हो चुकी है, और गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स ओपन करे, आपकी न्यूज़ एंड मीडिया को यूज़ करा, स्वयं प्रभा चैनल्स हैं, स्वयं के चैनल्स हैं, तो वहाँ से भी स्टूडेंट बहुत कुछ लर्न कर रहा है। और ई लर्निंग रिसोर्सेज प्लेंटी आर अवेलेबल। द ओनली थिंग इज़ अबाउट सेल्फ मोटिवेशन। स्टूडेंट को सेल्फ मोटिवेटेड होके ई लर्निंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली टीचर्स को भी अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुझे नई नई आईटी की स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करना है। आज के इस एजुकेशन 4.0 में जैसे बात हुई, तो ये जो ई लर्निंग का पार्ट है, फ्रॉम टीचर साइड, फ्रॉम स्टूडेंट साइड, ये दोनों साइड को ही साथ चलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एज अ साइंस फैकल्टी मैं बता रहा हूँ कि हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहाँ होती थी, जो हम लैब में बच्चा उस केमिकल को देखता था, वो कलर चेंजिंग एक्सपीरियंसेस थे, वो सारे पार्ट यहाँ मिसिंग हैं। बट ऑफ कोर्स हमें कुछ पार्ट है जो ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड आज भी करा रहा है। सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं ये कहूँगा कि बच्चा आज कुछ लर्न कर रहा है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हम देखें कि बच्चा पहले जहाँ उसको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, आज कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो उसमें इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंगेजिंग योर सेल्फ। तो वहाँ स्टूडेंट्स भी इंगेज है और टीचर्स भी अपने आप को जितना ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। तो हाँ, मैं इस सिचुएशन को इस तरह देखता हूँ कि हमने उस रूप में अपने आप को ढालना सीख लिया है। आज की अगर बात करें, करंट सिनारियो ये है कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ गोइंग टू बी देयर एंड दिस इज स्केलेबल, मतलब ये आगे आने वाले टाइम में भी हमारा साथ देगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टीचर के लिए भी एक चेंज है, एक स्टूडेंट के लिए भी चेंज है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही हम देख रहे हैं कि नाउ दे आर मोर एक्टिव टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं रिक्वेस्ट रमन मैम कि आप ये हमें थोड़ा सा बताएं कि institution point of view से, like you are managing so many institutions of Sandanekari Charitable Foundation, like schools are there, colleges are there, and then training centers are there, and vocational centers are there. You're looking after everything, and thousands of students have been enrolled in this. अभी जो पोजीशन आई है उसके अंदर इमीडिएटली ये जो स्कूल क्लोजर की वजह से इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से क्या चेंज आया है इसके अंदर? थैंक यू मिस्टर संजय शर्मा जी। As we move ahead in the discussion, this is the 51st year of literacy which the world is celebrating. लेकिन ये जो 51st year आया है, ये बहुत एक डिफरेंट तरीके से, एक यूनिक वे से हमारे पास आया है। We have hit the unprecedented times. ये पहले कभी हुआ नहीं
और हम कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं थे किसी इस बात के लिए। अब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि आज ये कोविड-19 आ गया है और हमने ऐसे इसको हैंडल करना है। बट आई वुड से दैट एज एन इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। You have to give them technological support. You have to develop the staff. We had to counsel the children. We had to put all these things, the fragmented pieces together. जो अलग अलग चीज़ें थी वो सारी एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर आ गया था कि अब हमने कैसे हैंडल करनी है। The best I can say that we are actually responding in a very good manner. ये एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम लोग, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं हो रही है। There are many things which the children and the institution of today is missing. अब जैसे मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, जैसे हम पहले देखते थे कि चलो इंटेलिजेंस कोशेंट है, बट जब बच्चा स्कूल में आता है एक इमोशनल कोशेंट, एक सोशल कोशेंट, और आजकल एज एन इंस्टीट्यूशन जिससे हम अब हैंडल कर रहे हैं और टैकल कर रहे हैं वो है एडवर्सिटी कोशेंट। एक एडवर्स सिचुएशन में सिर्फ बच्चा नहीं है, पेरेंट भी है उसमें, टीचर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशन भी हैं, हेड ऑफ स्कूल्स भी हैं, एंड एवरीबडी इज़ देयर इनटू इट। तो इसको हमें कैसे बेस्ट हैंडल करना है, तो वी आर वेल इक्विप्ड नाउ। ग्रेजुअली वी हैव गॉट इनटू हाउ टू काउंसिल चिल्ड्रन, हाउ टू कीप देम हैप्पी, लर्निंग बड़ी जॉयस होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब हमको कंप्यूटर्स भी देखने पड़ रहे हैं, लैपटॉप्स देखने पड़ रहे हैं बच्चों के पास, मोबाइल फ़ोन्स देखने पड़ रहे हैं। अब जो है हर इंस्टीट्यूशन एक बच्चे के घर में है, तो हमको उधर से लेके हमारा जो विड्थ है, जो हमारी बैंड विड्थ है, बहुत बढ़ गई है। वहाँ से हम बच्चे के घर से लेके, एक टीचर के घर से लेके अपने इंस्टीट्यूशन तक हमको सबको इकट्ठे रखना है, सबको खुश रखना है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये एडवर्सिटी टाइम है, एडवर्स टाइम है, तो हमने ये हैप्पीनेस कोशेंट जो है, वी आर वर्किंग अ लॉट इन दिस। सो वी हैव गॉट टू मेक द एजुकेशन वेरी जॉयस, वी हैव गॉट टू बी वेरी हैप्पी, वी हैव गॉट टू काउंसल देम, वी हैव गॉट टू पुट थिंग्स टुगेदर, which is very challenging, but I would say we are responding very very well without any blueprint. तो ये चीज़ें तो हमारे ख्याल में नहीं थी कभी कि हमने ऐसे भी कभी करना है, पर मैं आपको कह सकती हूँ कि आज का स्टाफ जितना डेवलप हो गया है, जो चीज़ें हम कभी इतने सालों में सोच नहीं पा रहे थे, हमारे स्टाफ ने कितनी जल्दी करके दिखा दिया। और वहाँ बच्चे कितना अच्छा अडेप्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो लर्निंग। सो देयर आर पॉजिटिव थिंग्स and there may be some things which are not very good, but I would say that when you've been thrown into the swimming pool, swim and get across and give the best laps which you can give when you're swimming, or when you're on the treadmill, why should we fall off? So ये एक बहुत बढ़िया टाइम है जहाँ बहुत कुछ हमको करने को मिल रहा है और हम इनको डेवलप भी कर रहे हैं, और हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी रखें विद द टेक्नोलॉजी। वी आर मूविंग अहेड, much ahead, and I think there's a huge magical transformation in all the institutions where the children, the staff, HOS and everybody is adapted very very beautifully. Thank you, ma'am, for such a productive ideas from the institutional perspective. And at the same time we have Dr. Rajesh Tyagi ji with us. Dr. Tyagi ji, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें टेक्नोलॉजी का रोल है, जो इंस्टीट्यूशंस आज इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे हमने देखा है कई इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, दे वर नॉट यूजिंग कंप्यूटर्स, ITs, स्मार्ट क्लासेस, लेकिन आज उनको इस पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ रहा है। क्या कारण हो सकता है और इसका क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आगे? बेसिकली आप सभी जानते हैं कि ये बहुत 1980s में 90s में कंप्यूटर जो सब जगह आया, तो इसमें सबसे ज़रूरी था कि भारत सरकार और जितनी भी सरकारें थी उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन में IT अगर इनेबल्ड करें तो शायद बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए NME ICT एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, NPTEL प्रोग्राम चले, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, और स्वयं पोर्टल भारत सरकार ने चलाया। समहाउ ये अनप्रिडिक्टेबल बीमारी जो हम पेंडेमिक कहते हैं, कोविड आया, और जिसके लिए कोई एक्शन प्लान हमारे पास पहले से नहीं था। और इसमें एक आप सभी जानते हैं कि ये पूरी मानवता इस अदृश्य शत्रु से लड़ रही है,
और इस दौरान एक डिस्टेंस मेंटेन करना है जिससे हम इस बीमारी को अपने से दूर कर सकें। और ये जो गैप हुआ है, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल, ह्यूमन बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता। अब एक चैलेंज था, जैसे कहा जाता है एडवर्सिटी मेक सम मैन ब्रेक एंड अदर्स मैन ब्रेक रिकॉर्ड्स। सो हियर द प्रॉब्लम इज़ कि ये पूरी मानवता के सामने एडवर्सिटी है। अब इस चैलेंज को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि ये खाई बन चुकी है एक पर्सन के और दूसरे पर्सन के बीच, और आप ये सभी जानते हैं कि एजुकेशन विदाउट कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल। तो इस जो खाई बनी है, इस गैप को कैसे ओवरकम किया जाए। तो उस समय जो हमारे पहले विजनरी लीडर्स कहा करते थे कि ये सबसे अच्छा ऐड है, सबसे बेहतर एक तरीके से संसाधन है कि अगर हम एजुकेशन में आईटी इनेबल्ड कर दें तो शायद हम बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन किया था कि कुछ टीचर्स या कुछ ऐसा सेक्टर था जो इसे मतलब सीधे हाथों नहीं ले रहा था, लेकिन कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। और यहाँ पर वो ऐसा मतलब ऐसा माहौल बना एजुकेशन के लिए कि आज आईटी को अपने आप इसको हाथों हाथ लेना पड़ा, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, गॉड अंडरस्टूड आवर थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड आवर नीड टू बी लेड बाय समवन वाइजर। He needed a heart of compassion, of encouragement and patience, someone who could see potential and best in others, so he made teachers. और जब टीचर्स ने देखा कि मेरा बच्चा 4 महीने या इस तरीके से कैसे मैं उसके साथ इंटरेक्ट करूं, तो इसमें सबसे बड़ा जो फील्ड निकल के आया वो आईटी आया। जैसे मैं आईटी के साथ हूँ, मुझे पता था वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं, और हम सब जानते हैं कि कैसे हो रहा होगा, हम क्योंकि हम सब हर चीज़ आमने सामने यानी कि रूबरू करना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पर जब आईटी ने ये बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आज से पहले समहाउ आप सभी जानते होंगे गूगल मीट, जूम एक्सेट्रा, किसी ने नाम तक नहीं सुने थे, और नाम सुने होंगे तो यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन आज बच्चा जानता है। आज मेरा रिसर्च स्कॉलर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा मुझे गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट करता है, और आज कोलैबोरेटिव थिंकिंग आई है, पॉजिटिव थिंकिंग आई है। और इसमें इतना ज़रूरी कह सकता हूँ मैं एज ए आईटी पर्सन कि अगर आईटी ना होता तो क्या होता। अब आप ये देखिए कि इस आईटी ने ही आज एक टीचर्स कम्युनिटी को बच्चे के साथ कनेक्ट किया है कि आईटी की बदौलत एक टीचर्स पेरेंट्स से कनेक्ट हो सका है, एक अपने एम्प्लॉयर से कनेक्ट हो सका है। तो इससे बेस्ट हमारा मतलब मित्र कह लो, हमारा दोस्त कौन हो सकता है, जहाँ एक तरीके से ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। और इसके कितने इम्पैक्ट हैं। CO2 आप इमिशन करते थे, मैं बहुत दूर जॉब करता था तो सुबह शाम कारों में जाता था, जैम लगाता था, और वही चीज़ जब इंटरनेट पे उससे भी अच्छी हो जाए तो आप क्या कहेंगे, इसे तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज ही कहेंगे। तो इसलिए ये एक तरीके से हमारे लिए सबसे बेस्ट मित्र निकल के आया है, जिसने इस गैप को, टीचर के बीच के गैप को, दोस्त के बीच के गैप को एकदम दूर कर दिया है। आई रियली थैंक्स टू ऑल IT पीपल, थैंक यू वेरी मच। वो जो मीन्स ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो गैप, देयर वाज अ गैप, वो जो गैप था एक एजुकेशनिस्ट के अंदर, जो एक टीचर एजुकेशन दे रहा है और साथ में जो स्टूडेंट, जो प्यूपिल, जो लर्नर है, उसके बीच का गैप दूर हो रहा है। इसमें एक छोटा सा यहीं पर ही मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वसुंधरा, वो उनका भी एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और मैं चाहूँगा कि आप वो क्वेश्चन करें और साथ में हम विल ट्राई टू फाइंड द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। थैंक यू संजय सर। सो राजेश सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है दैट ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडमिक ने टेक कर लिया है ऑफलाइन क्लासेस को। सो इसकी वजह से स्कूल स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम यूजुअली डबल हो गया है। जहाँ पे पहले स्कूल स्टूडेंट 5 घंटे स्क्रीन टाइम स्क्रीन के सामने होते थे, वहीं अब कम से कम 9 से 10 घंटे तक हैं। आप स्कूल की क्लासेस को अलग करिए, कोचिंग क्लासेस के टाइम को अलग करें और एंटरटेनमेंट को अलग करें, तो इसको जोड़ें तीनों को, तो टोटल 10 आवर्स बन जाता है, विच इज़ एग्जैक्टली इन अ डेंजरस जोन। So how can students manage their screen time
and manage the psychological and physical complaints that are resulting from this increased screen time? आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और जैसे हम अक्सर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले डूज़ एंड डोंट्स आता है। तो जैसे आपने कहा कि इतना आर्ट्स पे कर रहा है, इन रियलिटी इतना आर्ट्स पे नहीं करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी समय समय पर स्कूल कॉलेजेस के जो टाइम पीरियड हैं वो कम किए हैं, और इस तरीके से ताकि स्ट्रेस ना पड़े। ऑल्दो बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरानी जो टेक्नोलॉजीज़ थी जिसमें हम बड़े बड़े, आपने देखा होगा जो CRT ट्यूब्स यूज़ किया करते थे, उसमें बहुत रेज़, हानिकारक रेज़, हार्मफुल रेज़, हम उसे आइज़ के थ्रू हमारे मतलब मस्तिष्क पर और हमारे इस पूरे बॉडी पर गलत इफ़ेक्ट डालती थी। अक्सर हम कहते हैं कि जब 1940s में न्यूक्लियर पावर को खोजा गया तो उसके साथ भी डूज़ एंड डोंट्स थे। आज वही न्यूक्लियर पावर अगर हम डूज़ के साथ करते हैं, अर्थात उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो हमें बेनिफिशियल है। तो सिंपली ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को स्लेव की तरह यूज़ करें, मतलब जो डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए प्रॉपरली यूज़ करें, तो बहुत बेनिफिट होगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा, टीचर्स से भी कहूँगा, जो सुनने वाले हैं उन सब से कहूँगा कि वो कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाली एक्सरसाइज दें अपने बच्चों को, जिससे कि उनका ब्रेन थोड़ी देर के लिए यूज़ होए। ऑल द टाइम स्क्रीन पर बैठे रहना या वीडियो करना, अगर देखो, द माइंड इज़ नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी इग्नाइटेड। मेन क्या है कि माइंड को एजुकेट कर रहे हैं, हम आइज़ को एजुकेट नहीं कर रहे। तो सिंपली ये है कि माइंड के लिए रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर की जाए, ऑल द टाइम उनको बैठाया ना जाए। और इवन दो टीचर्स और पेरेंट्स को इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि आजकल वॉक एंड टॉक का ज़माना है, आज डायनामिज्म है, आज आप क्लास ओपन में ले सकते हैं, जबकि पहले हम लोग क्लासरूम में ही क्लास लेना था, क्योंकि अथॉरिटी हमें ऐसी परमिशन नहीं देती थी। और आज तो आपका मन करता है कि नहीं, आज मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कशन करना है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप ओपन में घूमते हुए, पार्क में ब्यूटी को देखते हुए, ग्रीनरी लेते हुए, और जो आप मतलब CO2 एमिट करते अपनी व्हीकल से, वो सब बचाते हुए आज हम। और एक बात ध्यान देने की है कि ये बेसिकली परमानेंट नहीं है, ये आज हम जिस शत्रु से जो दिखाई नहीं दे रहा उससे लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हमारे पेरेंट्स साथ होने चाहिए, बच्चे साथ होने चाहिए, ताकि एक मिलवर्तन वातावरण बन सके। और जो गाइडलाइंस हैं, मैं इससे बेहतर मैम जानती हैं। वसुंधरा, if I reply your answer, I would suggest कि बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइंस HRD ने दे रखी हैं हमको, MHRD ने, और बड़े ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है कि आपने प्री प्राइमरी सेक्शन का हाफ एन आवर क्लास, वो भी थ्रू पेरेंट्स लेना है, ठीक है। और जब हम क्लास 1 to 8 आते हैं, उन्होंने पूरा एनुअल कैलेंडर जो है वो टेलर मेड, कस्टमाइज, ऑल्टरनेट कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि आपने क्लासेस 1 to 8 के जो सेशंस लेने हैं, 30 to 45 मिनट्स के मैक्स 2 सेशंस, मैक्सिमम 2 सेशंस। व्हेन आई कमिंग टू सीनियर क्लासेस 9 to 12, उधर भी उन्होंने बड़े तरीके से बता दिया हमको कि आप जो क्लासेस लेंगे वो 30 to 45 मिनट्स के 3 to 4 सेशंस लीजिए। अब इसके साथ साथ आई टोटली एग्री, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट challenge for a child to just sit in front of the screen, no matter we are trying to make our curriculum and our methodologies, our pedagogies, and we are trying to teach in a very joyful manner, but all the same आपका जो point है बड़ा valid है, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हमको बच्चों को थोड़ा ब्रेक भी देना है बीच में। तो अगर हम 15 मिनट्स ब्रेक देते हैं तो क्या होता है, what they say actually is scientifically that you should walk for 8 minutes or something, do a bit of exercise, refresh yourself, re-energize yourself, and then when you are in the fresh air, then you come back and look forward to the next class. साथ ही साथ ये भी बात है बेटे कि हमको yes क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग बनानी है, जॉयफुल बनानी है, बच्चे लुक फॉरवर्ड करें कि आज कुछ नई चीज़ आ रही है।
और साथ ही साथ जैसे फ्लिप टीचिंग है या फिर और कितने मेथडोलॉजीज़ हैं, हम उनको पहले सारा मटेरियल भेज देते हैं ताकि बच्चे पहले पढ़ लें घर पे, और मिनिमम हम लोग डिस्कशन जो है और डिबेट जो है वो हम स्क्रीन टाइम पे रख रहे हैं। कोशिश हमारी यही रह रही है। Exactly. Together we all can help students and Yes. parents, teachers and everyone can help to minimize the screen time. So I agree with all your points. Thank you so Thank you much. so much, and I'm very glad you made us again conscious on this, that we keep this in mind. This is It's a a really valid- good point. Like जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा walk and talk. You know, this is a new concept. Yes. एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्रमोट करता है ओपन लर्निंग को, जो प्रमोट करता है गोइंग बियॉन्ड द क्लासरूम। एक ये कंसेप्ट द वॉक एंड टॉक। अब जैसे आप मैम कह रहे थे कि इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, सो वी हैव आवर पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो हेयर। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम हर। अलका जी, आप एक पेरेंट भी हैं, एक टीचर भी हैं, और आपकी बिटिया भी यहाँ मौजूद है, और कितने घंटे, 8, 9, 10 घंटे जिस तरह से बात हो रही है, तो आपका क्या व्यू है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या वाकई 10, 9 घंटे, 11 घंटे, क्या ये टोटल टाइमिंग्स ऐसा होता है, या किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं? देखिए संजय जी, जो वसुंधरा जी का क्वेश्चन था कि 8 या 10 घंटे जो बच्चा स्क्रीनिंग पर है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरा व्यू पॉइंट है इस पर, वो ये है कि दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल एजेस ऑफ ग्रुप। मतलब हर किसी बच्चे पे ये नहीं लागू होता। जो बच्चे सीनियर बच्चे हैं, जैसे 9th 10th के हैं, 11th 12th के हैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन पे ये हम कह सकते हैं कि ये जो उनका स्क्रीनिंग है, मतलब जो है मोर देन 8 आवर्स है। अभी हमारा मतलब अनिला जी का, जैसे कि मेरी बिटिया है, उनका स्कूल टाइमिंग इतना मतलब बहुत ही अच्छा है कि जैसे उनको हर एक क्लास के बाद 10 मिनट्स ब्रेक है उनका, और डेली उनकी 2 क्लासेस होती हैं पर डे, एंड शी एन्जॉयज़ कि मतलब कैसे क्लास है। और इसमें बच्चे जो हैं, मतलब कोविड-19 में बच्चे जो है अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो रहे हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, एंड उनका जो डिजिटल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहा है। आई डोंट नो कि मतलब मेरी बेटी जानती है कि PDF फाइल कैसे बनानी है, कैसे भेजना है, मतलब वो इतना कुछ सीख चुकी है कोविड-19 के अंडर कि मुझे खुद हैरानी होती है कि वो इतनी कंप्यूटर सेवी हो गई है, उसको इतना लर्न कर रही है वो कंप्यूटर को, और एंजॉय कर रही है। और फिर उसमें जो बच्चों की जो डिफरेंट क्लासेस होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस होती हैं, डांस क्लास है, टाइम टू टाइम ये कलरी क्लासेस मतलब अनिला जी लेती हैं जो, तो उसमें शी एंजॉयज़ अ लॉट। तो उसमें पेरेंट्स को जो है वो देखना है कि अगर 10 मिनट्स का ब्रेक है तो बच्चे ने उसको मोबाइल या जो भी लैपटॉप है वहाँ से उठ के उसने थोड़ा 1-2 राउंड लगाया या नहीं लगाया। क्योंकि ये जो प्रेशर है ये सिर्फ अकेले मतलब टीचर्स का या और किसी का नहीं है, परिवार। अब प्रेशर जो आया है वो पेरेंट्स पे भी आया है, पेरेंट्स पे भी प्रेशर आया है कि पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए उनके स्टडीज़ में। पहले जो बच्चा था वो 8 to 2 चला जाता था स्कूल में, एंड पेरेंट्स जो है उसको नहीं कुछ भी नहीं पता कि भाई स्कूल में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है, कैसे बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा जो फीडबैक देगा आगे, हम वही फीडबैक पेरेंट्स मानते थे। अब सपोज बच्चे ने बोल दिया कि नहीं ये टीचर ने ऐसे मुझे डांटा, या टीचर ने मुझे ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, या टीचर, तो बच्चा वही फीडबैक लेके आ रहा है, पेरेंट वो टीचर के पास जा रहा है, और डिसकम्युनिकेशन भी हो जाता था कभी कभी कि भाई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कि भाई उसमें बच्चा कुछ और बोल रहा है, टीचर कुछ और बोल रहा है। बट अभी के जो पेरेंट्स और टीचर का जो गैप है वो ख़त्म हो रहा है। अब पेरेंट्स को पता है कि टीचर कैसे टीच कर रहे हैं, उनको पता है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है। अब बच्चा इसमें हमें सब कुछ मतलब पेरेंट्स को नॉलेज हो रही है कि कैसे हो रहा है। तो ये जो एक रिलेशनशिप है जो बॉन्डिंग टीचर और पेरेंट्स के बीच में, ये भी बहुत एक अच्छी हो रही है। तो ये सारे और हर एक चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप देखें कि भाई अगर सीनियर बच्चा भी है, अगर उसने कोचिंग क्लासेस लेनी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर जैसे कि बोला गया है कि मतलब लिमिटेड आपने टाइमिंग रखने हैं क्लासेस के, मोर देन 2 क्लासेस नहीं लेनी है, जैसा कि मैम ने भी बोला अभी। और सीनियर बच्चों के लिए 4 क्लासेस हैं मैक्सिमम।
तो उसके बाद बच्चे की जो अगर कोचिंग बच्चा ले रहा है तो कोचिंग जो ले रहे हैं वो 3 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, 3 PM to 6 PM होगी। मतलब मॉर्निंग में बच्चा अगर 3 आवर्स ले रहा है अपनी स्टडीज़ कर रहा है तो इवनिंग में भी वो 5 आवर्स कर रहा है। बट उसमें ये है कि बच्चा अपने आप को बीच में कितना वो गैप है उसको वो कैसे फिल कर रहा है ये हमने देखना है। क्योंकि बीच का जो गैप है ना, अगर 2 to मतलब अगर 12 o'clock या 1 o'clock तक, पहले स्कूल 2 o'clock तक होता था, बच्चा 3 o'clock घर पहुंचता है और उसके बाद वो पढ़ना फिर से स्टार्ट करता है। बट अभी क्या है, अभी तो 1 o'clock आपका कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आपको एग्जर्शन नहीं है, आप बड़े कंफर्ट जोन में आप क्लास ले रहे हो, आपको गरम गरम खाना, गरम गरम आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है घर पर। तो वो चीज़ देखिए आप कितना मतलब बच्चे के लिए कितना हेल्दी है। अभी बच्चा कोई आपको थकान नहीं है, तो वो आपने देखना है कि हम उसके, अगर हमें बीच में गैप आया है तो उस गैप को हमने कैसे फिल करना है। वो पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, वो पेरेंट्स को नज़र रखनी है, वो एक चेक रखना है कि बच्चा फिर से कहीं वो गेम्स में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया, आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कोई यूट्यूब के या कोई गेम्स नहीं देख रहा या कोई उन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। तो वो जब चीज़ें हो जाएंगी तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतना जो बच्चों पे प्रेशर है वो नहीं होगा और बच्चे बहुत लाइवली उसको लेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे। बट इसमें मुझे लगता है कि बच्चे की जो मतलब अगर देखा जाए हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर देखें कि इसमें मतलब बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन बच्चे की कहीं ना कहीं जो है ये जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो नहीं कर ले पा रहा। क्योंकि स्कूल जाएगा बच्चा तो बच्चा स्कूल जाने में अब वो एक्सपीरियंस लेता है, उसकी नेगोशिएशंस होती हैं दूसरे बच्चों के साथ, कुछ लड़ाई हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई, वो टीचर से करेगा या अपने आप से वो उसको हैंडल कैसे कर रहा है वो बच्चे को खुद पता है। तो वो कहीं पे ये चीज़ कमी आ रही है। एंड जो सभी स्टूडेंट्स हैं दे आर मिसिंग प्लेग्राउंड्स। अब बच्चा घर में सब चीज़ ले रहा है, क्लास ले रहा है, योगा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसको फिर भी कहीं बाहर जाके एक्सरसाइज करना या प्लेग्राउंड में जैसे वो खेलता था तो वो थोड़ा मिसिंग हो रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात, एक बिगेस्ट जो इसका ड्रॉबैक है ऑनलाइन क्लासेस का, कि जो आपकी इंटरनेट स्पीड है, अगर कुछ एरियाज़ हैं ऐसे कि जहाँ पे इंटरनेट स्पीड अभी इतनी अच्छी नहीं है तो बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मैं अपनी बात करूँ तो बच्चा मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो जब तक बच्चा मोबाइल यूज़ करेगा तो मेरे पास मोबाइल नहीं है। या अगर मेरा एक ही बच्चा, जिनके घर में 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं और सेम क्लासेस सेम टाइमिंग पे पूरा स्कूल लगेगा तो उनको भी मोबाइल लेना है, क्योंकि विदाउट स्मार्टफोन तो आप क्लास कर नहीं सकते। तो वो थोड़ा सा एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड मतलब स्मार्टफोन, तो वो थोड़ा सा इसका आ जाता है कि इसकी डिसएडवांटेज आ जाती है कि मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता स्मार्टफोन। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि देयर आर प्रॉज एंड देयर आर कॉन्स आल्सो, बट ओवरऑल द पॉजिटिव फीचर इज देयर। यस, क्योंकि उनका जो ब्रेक नहीं आया उनका स्टडीज़ में पहले, क्योंकि बच्चों का ब्रेक नहीं आया स्टडीज़ में और दे विल रिमेन बिजी विद देयर स्टडीज़। अब अगर जब स्टार्टिंग में कोविड स्टार्ट हुआ तो उनका हॉलीडेज़ हो गए थे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, तो बच्चा क्या था, सारा दिन टीवी के आगे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो बच्चा उसमें मतलब आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपको घर में ही रहना है। बट ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हुई तो बच्चा थोड़ा सा उसमें बिजी हुआ, बच्चा एक्टिविटीज़ में बिजी हुआ, अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हुआ, उसको पता है कि मुझे काम करना है। और मीन्स उसमें अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बच्चा जो है सेल्फ डिसिप्लिन हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है कि उसको टाइम पे उठना है। अच्छा मम्मा मेरी क्लास है, मुझे रेडी होना है इतने बजे तक। लेकिन ये आप सेल्फ डिसिप्लिन भी तभी हो पाएंगे जब आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट होगा। अगर जब तक आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं हो पाएंगे, ना रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे आप अपनी स्टडीज़ के लिए। तो मेरे व्यू पॉइंट से ठीक पॉइंट है, क्योंकि अब इसमें जस्ट टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू हैज आस्क्ड वसुंधरा के 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे हम लोग बैठेंगे जैसे, now that too depends upon the parents and that too depends upon the teacher. And
Of course, the role of institution is also there, and the role of a student is also there. So it's a joint effort, it's a collaboration, it's a teamwork कि हम yes, कैसे इस teamwork. समस्या को हैंडल करेंगे. Coming to the next question, we have Sandesh Sharma from Delhi University. He is representing. जैसे अभी मैम ये बात कर रहे थे कि हायर लेवल के ऊपर, तो उसके अंदर भी आपके पास क्या आपको लगता है कि चेंजेस आए हैं, या हम पहले जो एजुकेशन स्ट्रैटेजी थी और अब जो एजुकेशन स्ट्रैटेजी आई है, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस? सर अगर पहले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, देयर आर लेस नंबर ऑफ दिल्लीइट्स, मोर नंबर ऑफ पीपल कम फ्रॉम द हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और इवन फ्रॉम द साउथ इंडिया itself. So there is a language barrier between the professor and the student. So with the introduction of these technologies, now we are getting high quality content free of cost. So if a Gujarati student is coming to Delhi University, he can study the same thing in Gujarati language. If a Maharashtra student is coming to Delhi University, he can study the same thing in Marathi language. So multiple regional languages concepts are available. So earlier this thing was missing. And one more thing, like in a group of 50-60 students, sometimes a student can't ask his or question so freely or so confidently. यार मेरा इतना छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेरे को पूछना है कि 2+3 5 आया तो ये कैसे आया, या कुछ मल्टीप्लिकेशन का भी है, तो वो बच्चे नहीं पूछ पाते थे. बट अब क्या है, सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल है. नॉट ओनली द सॉल्यूशंस बट वीडियो सॉल्यूशन आर अवेलेबल. दे आर एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे प्रोसीजर करो, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है. सो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जो पहले डिसएडवांटेजेस रह गए थे या जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी या जो सफ़र कर रहे थे ड्यू टू दिस लैंग्वेज बैरियर और अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते थे, उनको बड़ा फ़ायदा मिला. एंड माई क्वेश्चन टू अमित सर इज़ दैट, लाइक सर, व्हेन आई वाज इन क्लास 7th और 8th 9th, सो जब हमें टीचर पढ़ाते थे, लाइक अगर हिंदी का कोई लेक्चर है या इंग्लिश की कोई है, तो हमसे पूछा जाता था इस कहानी से या इस कविता से आपको क्या सीख मिली, और हमें बोला जाता था आप जाइए, हम आपको 1 वीक का टाइम पीरियड देते हैं. नेक्स्ट वीक व्हेन वी मीट ऑन मंडे, देन हमें बताना कि आपने इसे कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया. तो वो हमसे सार पूरा का पूरा सुना जाता था, कहाँ का इम्प्लीमेंटेशन हुई. जो हमारी इंडियन की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, जिसे आप वैल्यू एजुकेशन कह लो या गुरु शिष्य परंपरा कह लो, जो हमने देखा आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, वो आज कहीं ना कहीं इसके आने से डिमिनिश होती जा रही है और हमें इनिशियल आज मिल चुके हैं. आने वाले टाइम में इसके और अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिलने वाले, बिकॉज ये ऑनलाइन एजुकेशन के आने के कारण जो हमारी ये एथिक्स थे, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, ये डे बाय डे डिमिनिश होती जा रही है. सो आप इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है कि आने वाले टाइम में, बिकॉज इनिशियल्स वी आर गेटिंग, तो हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सो दैट मीन्स हम जहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी की बात करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, वहाँ पर थोड़ा सा हमारा एक नेगेटिव शेड भी आता है. ऑफ कोर्स द पॉजिटिव वैल्यूज आर मच मोर हायर, लेकिन कहीं कुछ चैलेंज अगर आता है तो अमित जी उसे कैसे सॉल्व किया जाए? जैसे अभी संदीप जी ने बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन उन्होंने रेज करा. संदीप जी ने कहा कि गुरु शिष्य और परंपरा की बात करी. मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि पहले हम देखते हैं कि जब बच्चा अपने कैंपस में एंटर करता था, स्कूल में एंटर करता था, कॉलेज में एंटर करता था, तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट उसको मिल जाता था. उसको पता है कि वो एक शिक्षा के मंदिर में एंटर कर चुका है, अब उसको गुरु की माननी है. एक लाइब्रेरी में जाता था तो बुक्स का एनवायरनमेंट उसको एजुकेशन के प्रति मोटिवेट करता था. तो आज वो एनवायरनमेंट अपने घर में रह के कहीं ना कहीं वो उससे मिसिंग फील करता है. उसे लगता है कि आज भी वो चीज़ मिसिंग है. आज वो अपने गुरु तक पहुंचना चाहता है, अपनी कोई बात रखना चाहता है. अदर देन टीचिंग भी बहुत सारे मेंटरशिप क्लासेस भी होती थी, तो आज वो मेंटरशिप क्लासेस हैं जो मिसिंग हैं, जो उन्होंने पॉइंट रेज करा. और जहाँ तक ये चैलेंजेस सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यूज़ हैं, तो वहाँ तक तो क्लासेस भी अभी पहुँच रही हैं. धीरे धीरे स्मार्टफोन्स हर घर में पहुँच रहे हैं. तो हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा. ये पैंडेमिक आया है तो सडनली आ गया है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हम ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में किस तरह से जाएंगे, क्या मोडस ऑपरेंडी होगी, हम क्या प्रोटोकॉल्स अपनाएंगे. तो ये सारी चीज़ें जैसे एकदम आई तो धीरे धीरे अलग अलग वेंचर्स को भी हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. अब आईटी में ही देख लें, जैसे राजेश जी इसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ जूम या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या गूगल मीट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है. देयर आर वेरियस अदर पोर्टल्स अवेलेबल. और जैसे पहले इन्होंने स्वयं की भी बात करी, स्वयं है, NPTEL है, देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल.
और जहाँ तक अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो वहाँ पे वो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन था, ऑफ कोर्स वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि आप सामने बात कर सकते थे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से आप जज कर पाते थे जब आपका स्टूडेंट आपके सामने होता था। यहाँ पे वो पॉइंट मिसिंग है, बट वही चीज़ है कि ये पैंडमिक है, ये टेम्परेरी फेस है, हमें इससे गुजरना है। तो धीरे धीरे जैसे ये फेस एंड होगा हम वापस उस कल्चर में भी आएंगे। कुछ यहाँ से हम सीखेंगे, कुछ ऑनलाइन लर्निंग से हम सीखेंगे, कुछ ऑफलाइन की वैल्यूज़ को हम वापस अपनाएंगे। तो ये पॉइंट है, ये फेस है, इसको धीरे धीरे हमने निकलना है। ये जैसे बड़ा इन्होंने अभी कहा वाकई के कोविड-19 का जो फेज़ है ये फेज़ टेम्परेरी है और ये फेज़ चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, हम जो अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आएंगे वो चेंजेस परमानेंट हैं। सो एक टेम्परेरी फेज़ हमें परमानेंट चेंजेस दे के चला जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो परमानेंट चेंज है, नाउ दैट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपके पास भी आता हूँ क्योंकि इतनी क्यूरियोसिटी सब बच्चों में हो गई थी, तो एक छोटा सा क्वेश्चन शायद आपके लिए रेस कर रहा था। आप पूछें अनिला, आप स्कूल से हैं, आप पूछें क्या। थैंक यू संजय सर। डॉक्टर सर त्यागी, आई हैव वन क्वेश्चन दैट अगर आपने कहा एक कॉन्सेप्ट वॉकिंग टॉक, तो अब हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि आपने कहीं हिलना नहीं है, हमें कहीं चलना नहीं है, हमें अपना स्टिल रखें और आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना, तो और ना ही वीडियो ऑफ करना, तो उससे कैसे हम करें? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ये रियल में है कि कुछ टीचर्स और टीचर्स कम्युनिटी क्योंकि बच्चों पर थोड़ा सा निगाह रखना चाहती है कि जो मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ उन्होंने नया सीखा है, तो उसको वो अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि जैसे ही हर टीचर को आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं उनको ये भी सलाह दूंगा कि बच्चे पर इतनी पैनी निगाह ना रखें, क्योंकि जो हम क्लासरूम में करते थे, क्लासरूम में क्या होता था कि बच्चा हमेशा मतलब जितने भी आवर्स वो पढ़ाते थे तो स्टैंड स्टिल बैठा रहता था, उसकी क्रिएटिविटी नहीं होती थी फिजिकली, और जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता था तो बच्चा मूव करता था तो उसकी क्रिएटिविटी हो जाती थी। लेकिन समहाउ जब से ये ऑनलाइन आया है, ऑनलाइन इज़ अ डायनामिक लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसमें आप मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। अगर टीचर्स, जैसे जनरली क्या होता है कि अगर आप फ़ोटो ना देखें, जैसे बेसिकली जो वॉइस है, जो वॉइस टीचर बोलते हैं, बच्चा तो वही सुनता है और उसी से उसके डाउट क्लियर होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आज़ादी वॉक एंड टॉक की होनी चाहिए, और ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसमें मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में मूवमेंट नहीं आएगी तो अपने आप ही लेजीनेस हो जाएगी। और फिर आईटी फील्ड का फ़ायदा क्या है? आज आईटी फील्ड ने इतना फ़ायदा दिया है कि आज लोग बाग 2-2 घंटे ट्रैवल करते थे, अपने ऑफिसेज में जाते थे, आज हम सब घर पर ही वो काम कर सकते हैं, घर पर ही वो लर्निंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो स्पेयर टाइम है, बच्चों को भी मैं आपके बदौलत कहूँगा कि उस स्पेयर टाइम में अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि पहली जो चीज़ इंसान के साथ है, बच्चों के साथ है, वो है एक स्वस्थ जीवन। और अगर आप ध्यान दें तो इस पेंडेमिक में हमें सबसे पहले जो मंत्र मिला है वो स्वस्थता का मंत्र मिला है। हम क्यों सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं, क्यों हम टेक्नोलॉजी पर आए, ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग करें, और किस लिए? एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो मैं टीचर्स को भी ये एक तरीके से अपनी सलाह दूंगा कि बच्चों को हेल्दी लाइफ के अवेल करने के लिए उन्हें एक्सरसाइज को मोटिवेशन दें, योगा को दें, सूर्य नमस्कार को दें। आज धीरे धीरे सब ये मानने लगे हैं कि पहला जो सुख है वो निरोगी काया है, और आईटी ने ये सब कुछ दिया है। आईटी में आप कभी बेटा जब फ़ोन पे आपके कॉल आती है तो क्या आप स्टैंड स्टिल होकर के सुनते हो या थोड़ा मूव भी करते रहते हो? बताओ बेटा। मूव करते रहते हैं। वेरी गुड। क्या उस टाइम आपकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है जब आप मूव करते हैं? जी नहीं। बिल्कुल। तो ये आईटी ने दिया है। पहले आईटी ने क्या किया था कि पहले कम्युनिकेशन हम स्टैंड स्टिल खड़े होकर के वायर केबल के थ्रू बात करते थे, अब क्या है, वायरलेस हो गया। तो ऐसे ही आईटी आज बहुत डायनामिज्म ला रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, ब्रेन क्या है? ब्रेन की खुराक है नई टेक्नोलॉजी सीखना। जी। आपके माध्यम से, क्योंकि लिटरेसी का है,
कहा जाता है द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write but those who do not want to learn, unlearn and relearn। तो ये जो रीलर्न वाली है, आज हमारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसा समय आ गया, लेकिन ये बहुत अच्छी रीलर्निंग है। आज हम सफाई को समझ रहे हैं, हाथ धोना सीख रहे हैं। आज हम एक तरीके से उस पूर्वज, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था गुरु परंपरा का, तो गुरु परंपरा हमेशा स्टार्ट होती है फिजिकल एक्सरसाइजेज से। आपने देखा होगा हमारे जितने भी पुराने लोग थे सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, फिर अपने टीचर से डाउट पूछते थे। एक्चुअली में डाउट जो राइज होता है वो होता है ब्रेन में, और ब्रेन को क्या चाहिए, आप देखो ब्रेन को साउंड चाहिए, आवाज़ चाहिए अपने टीचर की जो उस प्रॉब्लम को फेस कर चुका है, और आवाज़ आप वॉक एंड टॉक के थ्रू रिसीव कर सकते हैं ड्यू टू ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। That's an excellent view, और it's same like thinking outside the box। अगर IT आज नहीं होता और अगर आज ये पैंडेमिक आता तो क्या सिचुएशन होती? बिल्कुल, ये it is only because of IT we are helping, that IT is helping to prevent the spread of this disease। Definitely। Because we know that what to do and what not to do। So that's an excellent point कि IT एक बहुत बड़ा positive way है। We have lot of organizations working for the community of each and every section of the society, and one of such very big organization is Sant Nirankari Charitable Foundation। We have with us the administrator of all the educational institutions of Sant Nirankari Charitable Foundation, Ma'am Raman Manhas ji। So let's move to Raman ma'am, and can we have some idea कि SNCF के इतने सारे institutions चलते हैं, इतने सारे centers चलते हैं, schools हैं, colleges हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वोकेशनल सेंटर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। सो हाउ वी आर मैनेजिंग ऑल दिस बिग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट? कैन वी हैव सम ब्रीफ आइडिया ऑन व्हाट बेसिक एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस? Thank you so much. Yes, SNCF, Sant Nirankari Charitable Foundation, the vertical which works under 3, Enrich, Empower and Heal. So Enrich के अंदर हम लोगों के educational institutions चलते हैं। It is bringing what in short, if you ask me, I can say it is doing magical work and bringing a huge transformation in so many lives। अब जैसे हम स्टार्ट करें तो हमारा पहला इंस्टीट्यूशन जब शुरू हुआ था वो 1949 में हुआ था। आज हमारे पास 22 इंस्टीट्यूशंस हैं, और सबसे अच्छी बात जो इसमें है, द यूनिकनेस ऑफ होल थिंग इज़ दैट जो हमारा स्कूल्स हैं वो खाली पब्लिक स्कूल्स नहीं हैं। हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं NCR में भी हैं, पंजाब में भी हैं, बंगाल में भी हैं, फिर साथ ही साथ अगर देखो हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी हैं, प्री प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, जैसे आपने कहा कि वोकेशनल सेंटर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, सो कॉलेजेस हैं, वी गॉट अ स्प्रॉलिंग 2 कैंपस कॉलेज ऑल्सो। सो इतना कुछ है, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि हमारे फ्री स्कूल्स भी चलते हैं। ओके, सो वी हैव गॉट सम फ्री स्कूल्स। अब उनकी आप देखो कि हमारी जो विड्थ है, कहाँ से हम कहाँ तक चल रहे हैं। पब्लिक स्कूल हैं जहाँ में ऑब्वियसली बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, कंप्यूटर लैब्स हैं, एक डिफरेंट जेंट्री से हम डील कर रहे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स से डील कर रहे हैं। लेकिन जब हम जाते हैं कॉलेज में तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लिटिल रूरल एरिया जो हम बच्चे वहाँ से भी ला रहे हैं। लेकिन जब हम अपने फ्री स्कूल्स में जाते हैं तो हमारे जो जैसे प्रीतनगर में, लुधियाना में हैं, ये स्कूल्स हमारे 1987-91 में शुरू हुए हैं। कालेवाल बीट में हुआ, फिर हमारा मोगा में जो स्कूल चल रहा है, या हमारा यहाँ शाबा डायरी में जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, तो ये बहुत पुराने हैं। और सबसे हैरानगी की बात आपको जो लगेगी, ये जो बच्चे हैं ना, ये नोमैड्स के हैं, जो घूमते फिरते हैं, बर्तन बनाते हैं, 4 महीने रहेंगे फिर मे भी 2 महीने नज़र भी नहीं आते हमको। तो अब जब हम आज की बात करें, वहाँ से लेके आज तक, अब वो देखो कोई क्लास 5 तक चल रहा है, कोई क्लास 8 तक चल रहे हैं, पर दे हैव मेड फुटप्रिंट ग्लोबली। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक बोलते हैं ना फायर इन द स्टमक, वो बात थी उनके पास। दे हैड फायर कि अगर हमको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली, जो एक्चुअली लिटरेसी का मतलब है रीड राइट, और आजकल कंप्यूटर्स ऑब्वियसली विद इट, उन्होंने वो किया। अब जब पेंडेमिक आ गया हमारे पास, तो
आप ये देखेंगे आपकी हमने बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए। इधर हमारे स्मार्टफोन्स हैं, स्कूल्स में कईयों के पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब फैसिलिटीज़ भी हैं, और उधर उनके पास कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा फ़ोन होता है, वो भी वर्कर कहीं चला गया और उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे फ्री स्कूल्स हमारे चलते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज़ हमने फ्री कॉस्ट पे, फ्री कुछ नहीं ले रहे हम लोग, हम वेरी नाइस वर्कशीट्स बना रहे हैं और हम उनको जाके देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि अगर वो वहाँ से मूव भी कर रहे हैं तो वो वर्कशीट्स हमारे पास कंप्लीट करके ले आएंगे। तो डिफरेंट मीडियम्स और मोड्स हम लोग उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हमारी आगे प्लानिंग है, अभी मैनेजमेंट बैटरी है, तो हमारी प्लानिंग है कि कहीं हम एक सेंट्रल एक जगह में एक कोई उनको ऐसी चीज़ लगा दें, टीवी या कोई स्मार्ट फ़ोन्स और कंप्यूटर्स कुछ लगा के उनको ये सारे वहाँ बैठ के शाम को क्लास अटेंड कर लिया करें। तो वी आर थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स ऑल्सो। बट द ब्यूटिफुल पार्ट इज़ कि ये बच्चों को जब थोड़ा सा भी हमने दिया तो दे ग्रैब द बॉल एंड दे रैन विद इट। आज आप हैरान होंगे, मैंने सुना है कि कनाडा भी इनके बच्चे वहाँ सेटल हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो जहाँ हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि NCR है और बच्चों के पास बहुत कुछ है। साथ ही साथ मैं एक और बात कहूँगी, जैसे अभी पेरेंट्स ने भी बात की या उन्होंने भी बात की कि द अदर डे आई वाज वाचिंग समथिंग, तो उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ बात की, टेक्नोलॉजी एंड टच, टेक टच, उसको आजकल बोलते हैं टेक टच। एक तरफ तो हमारी टेक्नोलॉजी है, तो ठीक है, टेक्नोलॉजी से तो जैसे मैंने कहा हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लर्निंग टीचिंग हो रही है, पर बच्चों के जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो रोज़ आना, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बाकी जो चीज़ें सीखता है बच्चा कि कैसे मैंने सुबह आना है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। यू आर नॉट गोइंग टू स्टे एट होम फॉर एवर। So that obviously the child is missing, fighting with each other, playing with each other, seeing a teacher, hugging, finding out things. एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है वहाँ आपको पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, हम लोग एक पेरेंट होकर हमेशा कुछ जजमेंटल रहते हैं कि ये करना है ये नहीं करना। एक टीचर है जो आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे लेके जा रही है। सो वो जो चीज़ें जो है वो तो डेफिनेटली वो मिस कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था लिटरेसी ना एंड है ना बिगनिंग है। एजुकेशन है क्या? एजुकेशन है कि चाइल्ड की माइंड बॉडी स्पिरिट की पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी? वो तो तब है जब बच्चा स्कूल में आएगा। सो ऑब्वियसली वी हैव टू हैव अ ब्लेंड। फिर आजकल बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी किताब पढ़ रही थी कि एनीवेयर एनी टाइम ऑनलाइन ब्लेंडेड टीचिंग। अब ये ज़रूर नहीं है कि हमने वो जैसे आप कह रहे हो कि स्क्रीन पकड़ लिया तो बैठ गए और वहीं पढ़ना, ये बात नहीं है। लर्निंग कहीं में भी हो सकती है, एनीवेयर एनी टाइम। ओके, सो ऑनलाइन और ब्लेंडेड अप्रोच रखनी है हमने। एक बच्चा हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकता, उसको हम ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जो वो घर में बैठ के करे। जैसे दी अदर डे आई वाज अटेंडिंग एंड ऑब्जर्विंग अ क्लास, तो वो आप एक समझा रहे थे कि क्यूबॉइड 3D कैसे बनाते हैं। तो टीचर ने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से बताया कि ये देखो, ये मैंने फिगर है, ये आप ऐसे काटोगे, इसमें आप अलग अलग ड्राइंग करो जो आपके मन के इमेजिनेशन है। एक फैमिली मेम्बर ड्रॉ करो, एक ये करो और उसको फिर एक क्यूब बना दो, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। तो बच्चों ने, मैंने देखना चाह रही थी कि नेक्स्ट डे वो बच्चों ने किया कि नहीं, बच्चे कितना ब्यूटीफुल एक बना के लाए। सो हर तरीके से स्टाफ, टीचर, इंस्टीट्यूशंस बहुत योगदान करके उनको हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट रियल लाइफ। सो वी हैव टू थिंक, एंड आई वुड ऑल्सो बिफोर जस्ट वाइंडिंग अप माई से आई वुड से, जैसे पैट शूमेकर ने कहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिख रखी है अबाउट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रिंसिपल्स। उन्होंने एक बड़ा अच्छा कोट दिया है उसमें, और उन्होंने, पैट शूमेकर ने कहा है कि आपको एक वेंडर बनना है, आइडियाज़ का जनरेट करो, और आपको एक इंक्यूबेटर बनना है कि आपके क्या व्यूज़ हैं, कैसे क्या है। सो वट एवर यू आर इज़ कमिंग टू योर माइंड, यू हैव टू सी दैट यू प्रोग्रेस फर्दर। सो ये बहुत बचा है। हम एक इंक्यूबेटर, मतलब कि हम हमेशा सोचते रहें कि हमने आगे कैसे बढ़ना है और आगे क्या करना है। आइडियाज़, ये खाली एक डेटा कलेक्शन में नहीं लगे रहें और फैक्ट्स की बात खाली करके ना करके आगे बढ़ें, एक ह्यूमन टच देने की कोशिश करें इन विच एवर वे, विच एवर सफियर। सो हमारी लार्जली मीटिंग्स इस पे ही चलती हैं कि हम लोग देखें कि हम लोग कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं और ये थिंक टैंक जो है ये आगे डेवलप करता जाए। सो वी हैव गॉट अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्कूल्स एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग एंड ग्रेट वर्किंग विद देम।
That's very good. That's a lot of schools and educational centers we are running, and lot of work SNCF has been doing in the community with all the students, with the parents, and now with the change in the circumstances, with the new ideas SNCF is coming with their schools and educational pattern, and I'm sure कि जो नए नए आइडियाज़ मैम आपने बताए हैं या यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने बताए हैं, इसमें बिल्कुल एक बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि एक नए इनोवेटिव इन्वेंशंस के साथ SNCF इज़ मूविंग अहेड, एंड ऑन दिस डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी, जहाँ हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, नॉट द ट्रेडिशनल डेफिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू रीड एंड राइट, बट इट्स वेदर यू नो द टेक्नोलॉजी और नॉट। और जहाँ कोविड की बात है, कोविड इज़ नॉट अ परमानेंट फेज, दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज, एंड जो चेंजेस लेके आएगा हमारे लिए, नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट। इसमें एक छोटा सा, कल मैं पढ़ रहा था कि इफ़ यू वांट टू ओपन द डोर फॉर फ्यूचर, कोविड फ्री फ्यूचर, देन जस्ट फॉलो द वन स्टेप दैट इज़ कॉल्ड डोर। सो आई सेड व्हाट इज़ डोर, ये डोर क्या है? तो कहते हैं डी स्टैंड्स फॉर द डिजिटल पेमेंट्स ओनली, so you have to go for a digital payment, then O stands for the online entertainment only, and then online shopping, and the R is the remote work, that is working from home. So there is a door to keep yourself away from this particular pandemic. Since we have come to a conclusion that current scenario is quite complicated, whether the role of technology is good for us or bad for us. Now coming to this point, Sandesh and Vasundhara, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द फ्यूचर विजन ऑफ पोस्ट कोविड इरा। इस कोविड इरा के बाद आपका क्या व्यू है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि एजुकेशन पैटर्न, एजुकेशन प्रोसेस will be going to work as it is working today, or it is going to be a different? Sir, like many educationists have termed this like this is the education 4.0 phase, and the 21st century is also termed as the era of the technology. Like we are now using the technique of artificial intelligence, machine learning, like coding has been now introduced at class 6 level, which was earlier not there. So this shows that now we are adopting the technology day by day in our real life also. Like by 2025, if there is a constant use or there is an increase in use of artificial intelligence or machine learning, it will add up around $500 billion to our economy by 2025 itself. As we can see, the current economic scenario is slow down phase. So this will also a very benefit or a positive aspect of this. And one more thing, like with the coming introduction of the new education policy, there is a entry and exit or a holistic approach. For example, if a student, let us suppose that he has completed 2 years and the course is about 3 years, but now due to circumstances like financial crisis or any other thing, he can't complete his remaining course. He have completed 2 years. So now he will get 2-year degree or a certificate program that he has completed till now, and he want to continue the same thing, let us suppose after next year within a break of 1 year. So he can carry on with the same thing where he have left. Vasundhara, what do you think about this? It's going to help you in the future, post-COVID era? Yes, absolutely. I agree with Sandesh ji first, where he quoted NEP 2020, National Education Policy, where he mentioned about coding and all these things. Also, one more thing, that subjects will be taught in regional languages. For example, if somebody from South needs to learn something in Manyari or any of the regional language, they can learn it in that language rather than Hindi or English. So it has broken the barriers of language. Regional languages will be promoted. Secondly, when students have attended so long period of online classes, they will value the offline classes more. They will value their teachers. They will value their their peers and other things and the surroundings that were given to them. As जिसे कहा जाता है, सहज में ही मिल गया था. हम रोज स्कूल आते थे, हमारा एक शेड्यूल होता था. अचानक से वो शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था. हमें ऑनलाइन पढ़ना था, हमें सब कुछ ऑनलाइन करना था. सो एक तरीके से एक पूरा रेवोल्यूशन है. एजुकेशन रेवोल्यूशन भी है, एक ह्यूमन रेवोल्यूशन भी है एक तरीके से. हर भी पैंडेमिक या एपिडेमिक आता है.
So it is a learning for humans to understand what they lack and where they need to improve and what they need to appreciate more. So right now we started appreciating human contact. We started appreciating mental health as well. We will start appreciating about education, and as this literacy date of 2020, it's about digital revolution in education. So it will be valued more. As many panelists quoted that teachers have become tech savvy, so will students, and moreover they will also understand that technology is not their master. It is a slave which needs to be utilized properly and judiciously. Thank you. That's excellent. और जिस हिसाब से डॉक्टर राजेश और डॉक्टर अमित जी बता रहे थे और जो इनोवेटिव आइडिया मैम आपने दिए हैं, या पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैरानी की बात थी कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव, दे आर कमिंग विद द न्यू आइडियाज़ नाउ। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने इतना अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पर आए और अपने ब्यूटीफुल आइडियाज़ हमको दिए। एंड लेट्स होप फॉर मोर सच डिस्कशंस। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, you can mail to us, you can write to us sncfmedia@nirankarifoundation.org, और इसके ऊपर अपना फीडबैक दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम इसको और निखार सकें, so that we can improve our this talk show for further. Thank you very much. Thank you for time. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you.